Salam. Sahar beta, how are you? Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम बेटा. अच्छा, तलहा अब्बासी बेटा, कैसे हैं आप? सैयद उमैर बेटा, कैसे हो? अच्छा, गुड बेटा. सैयद इबाद हैदर, समीर काजी, इब्राहिम साकिब, दानियाल, अरीब, अनस बेटा, आई होप आप सब ठीक होंगे. अच्छा, ओके. ना बेटा, आ, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि व्हाट वी डिस्कस इन आवर लास्ट डिस्कशन. वी डिस्कस्ड अबाउट लिगेंड. सो व्हाट इज लिगेंड? अच्छा अच्छा, इट्स ओके तलहा बेटा, नो इशू. What is ligand beta? Ligand is a particle which can make a dative bond using its lone pair. So ligand is that particle which can make dative bond with the central metal ion. Okay. So today we are going to classify ligand as monodentate ligand. Monodentate ligand. Monodentate ligand is that ligand which can only make one dative bond with the central metal ion. Okay, ligand or particle or species which can make only one dative bond with the central metal ion. The central metal ion. Okay. अच्छा ना बेटा, monodentate ligands में these ligands will be considered as monodentate ligands. Chloroligand, this CN ligand or cyanoligand, this amine ligand, it is NH2 negative, the hydroxyligand. These are monodentate ligands. Okay. Similarly, H2O is monodentate ligand. NH3 is monodentate ligand. You know, oxygen has two lone pairs. लेकिन एक एटम कैन ओनली इन्वॉल्व वन लोन पेयर फॉर डेटिव बॉन्डिंग. तो अगर कोई एटम हो उसके पास एक से ज्यादा लोन पेयर हो, तब भी दैट एटम विल इन्वॉल्व ओनली वन लोन पेयर फॉर द डेटिव बॉन्डिंग. ठीक है. So the particles which are visible are monodentate ligands because they can make only one dative bond with the central metal ion. Or monodentate ligands में these ligands are negatively charged. These are negatively charged. These ligands are neutral. Okay, but these are monodentate ligands because they will make only one dative bond with the central metal ion. Achha, now beta, the next thing is bidentate ligand. Bidentate ligand. Bidentate ligand, a ligand which can make two dative bonds involving two lone pair of electrons with the central metal ion. A ligand which can make two dative bonds with the central metal ion involving two lone pairs. So such ligand is bidentate ligand. Now, beta, carefully listen this because you have to memorize these two bidentate ligands. Bidentate ligands will make two dative bonds. You need to memorize these two ligands, okay? Because they are syllabus-based ligands. Beta,
Can you name this compound? Which compound is this? Anyone in the class who can name this compound? Diol. It's not alcohol, beta. It's not Sir, dicarboxylic. हाँ, it's dicarboxylic. हाँ, ठीक है. Generally, you can say it's dicarboxylic. लेकिन specifically, you will say ethane because 2 carbon atoms are there. And then you will place 1, 2. And then you will say dioic acid. Dioic acid. Dioic acid. Ethane 1, 2 dioic acid. Okay. Now, what happens when this dioic acid is ionized? When this dioic acid is ionized, you get this thing, O negative, and this is O negative. Now, we will say this is ethane 1, 2 dioate. Okay. Now, this ethane 1, 2 dioate, this oxygen has lone pair. The other oxygen also has lone pair. So now this ion can make 2 dative bonds. Okay? This ion will make 2 dative bonds. One dative bond will be formed from this oxygen, this oxide, and the other dative bond will be formed from this oxide. So this single particle now can make 2 dative bonds. Okay? One arrow represents one dative bond and the other arrow for the other dative bond. So this is bidentate ligand. Right, beta? And you have to memorize this one. आपको याद रखना है कि this is the bidentate ligand. And this bidentate ligand is di-negative. इसका जो charge है वो 2 minus है. You can also write this bidentate ligand as C2O4 2 minus. This will be C2O4 2 minus. I hope कि ये आपको याद रहेगा. You have to memorize it. ठीक है? Ethane 1, 2 dioate. You have to memorize this bidentate ligand. Any question, beta? Okay. Now the second bidentate ligand will be, and you have to memorize this one as well. This is your syllabus-based ligand. Beta, this is NH2. NH2 is amine. And this is another NH2. How to name this one? How to name this compound? 1, 2 diamine. This is shabash. Ethyl 1, 2 diamine. Okay? Now this is again bidentate ligand. This nitrogen has lone pair, while the other nitrogen also has lone pair. So one dative bond will be formed from this nitrogen, and the other dative bond will be formed from this nitrogen. So this is also a bidentate ligand, right? So you can also write this bidentate ligand as C2H4NH2 whole taken twice. सर इसमें नाइट्रोजन के हाइड्रोजन नहीं छीने हमने जैसे उस OH के छीने थे. नहीं इस ये न्यूट्रल है. दैट इज द रीजन. ओके, मैंने इसलिए कहा कि आपको मेमोराइज करना है. दिस बाइडेंटेट लिगेंड इज न्यूट्रल, लेकिन जो ऊपर वाला था ये डाई नेगेटिव है. इसका चार्ज बड़ा रेलेवेंट होगा आगे जब हम एग्जांपल्स लेंगे. दिस इज डाई नेगेटिव. ऊपर वाला डाई नेगेटिव है, नीचे वाला न्यूट्रल है. यू हैव टू मेमोराइज लाइक दिस. ठीक हो गया जी बेटा? एनी क्वेश्चन? बाइडेंटेट लिगेंड क्लियर हो गया बेटा सबको? यू हैव, ये जो 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, यू नीड टू मेमोराइज दीज 2 एग्जांपल्स. ठीक है? अच्छा, उसके बाद बेटा पॉलीडेंटेट लिगेंड्स. अब आप गेस करो कि व्हाट विल बी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स. व्हाट विल बी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स? सर जो मोर देन 2 लोन पेयर शेयर करें.
हाँ शाबाश, जो मोर देन 2 डेटिव बॉन्ड्स बनाए तो वो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होंगे। ठीक है, लिगेंड, शाबाश, लिगेंड which can make more than 2 dative bonds by involving more than 2 lone pairs. तो वो that will be polydentate ligands. अच्छा, polydentate ligands एक सिलेबस बेस्ड कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है। ओके, देयर इज नो स्पेसिफिक एग्जाम्पल सिलेबस बेस्ड जो हो, लेकिन जनरल एग्जाम, any example can be asked in your exam. For example, this kind of compound, अगर आपको गिवन हो कार्बन में 3 bonds ना, वेट, अब इस कंपाउंड को बेटा देखिए, एंड दिस वन, is it a polydentate ligand or not? How many dative bonds can be made by this ligand? ये ligand कितने dative? हाँ शाबाश बेटा, you have a dative lone pair here on this nitrogen. एक lone pair इधर है, one lone pair here and one lone pair here. So it can make a dative bond with this nitrogen, one dative bond with this nitrogen, one dative bond with this nitrogen, one dative bond with this nitrogen. ठीक है, so 4 dative bonds are possible. So this will be a polydentate ligand. ठीक है, अच्छा ना बेटा, अगर कोई लिख रहा है बेटा तो मुझे बताएं. If you're writing, so then do tell me. अच्छा, now beta, what I discussed about the shapes in last class, we discussed about shapes of complexes. बेटा मैंने बताया था what is complex. जो बच्चे एब्सेंट थे लास्ट क्लास के लिए उनके लिए, कि when ligands make dative bond with the central metal ion, then the resulting ion or compound is complex. ठीक है, so if this kind of complex is given, complex usually square brackets से represent होगा. So suppose this kind of complex is given. So what will be the shape of this complex, beta? What is the shape of this complex? Linear. This complex is linear. Why? Because its coordination number is 2. Coordination number is 2. Okay. Coordination number is 2. Why 2 coordination number, beta? Because 2 ligands are present. And how to draw it? You may be asked to draw. So you will draw it like this: silver, and then this one CN ligand, and then the other CN ligand, and dative bond here, and a dative bond here. And overall charge is 1 minus. Beta, coordination number means number of dative bonds in the complex. Coordination number is 2 because there are 2 dative bonds in the complex. And CN is negative ligand, right? ये देखो, what I, ये मैंने क्या लिखा है? You have to memorize this thing as well. Okay, just keep in mind that chloro ligand, CN ligand, NH2 ligand, and OH ligand, these will be negatively charged. CN is negatively charged ligand. Okay, तो सिल्वर पे क्या चार्ज होगा बेटा? 1 Charge positive. on silver. Yes, 1 plus होगा, शाबाश, क्योंकि 1 minus and 2 minus from the CN and
ओवरऑल चार्ज इज 1 माइनस, सो सिल्वर हैज टू बी 1 प्लस। तो बेटा कॉम्प्लेक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ टू डिफाइन कॉम्प्लेक्स आयन? When ligands make dative bond with a central metal ion, then the resulting ion is complex ion. ये लास्ट क्लास में हमने डिफाइन किया था। ठीक है, फिर हर कॉम्प्लेक्स की अपनी शेप होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, मतलब 2 डेटिव बॉन्ड्स हो, तो फिर शेप विल बी लीनियर। ठीक है, शेप विल बी लीनियर बेटा। और हमने क्या डिस्कस किया था बेटा कि अगर इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, if coordination number is 4, then what will be the shape? Sir, square planar and tetrahedral. अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, अच्छा, तो देन यू विल सी कि इफ द शेप इज 2D, तो इट विल बी स्क्वायर प्लेनर। अगर शेप 2D है तो इट विल बी स्क्वायर प्लेनर, लेकिन अगर शेप 3D है तो इट विल बी टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज कॉपर, so which shape is this beta? Square planar. This one is square planar. Coordination number is 4, okay? 4 dative bonds are visible here. Acha. Or if I make it like this, so coordination number is 4 again. But now this complex is tetrahedral. ठीक है, तो टेट्राहेड्रल आपने इस तरह से बनाना है, द वन ऑन द राइट, और स्क्वायर प्लानर इस तरह से बनाना है, द वन ऑन द लेफ्ट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स विल बी गिवन टू यू, ओके? सो सपोज बेटा, सपोज के वी हैव क्लोरोलिगेंड्स, वी हैव क्लोरोलिगेंड्स हियर, and overall charge is 3 minus. So what it means कि charge on the copper, what will be the charge on central metal ion? 1 plus. Charge on copper, because chloroligands are negatively charged ligands, right? So negatively charged ligands means -4 plus x equals to -3. So x will be equal to +1. So central metal ion का charge 1 plus है. And on the other hand, let's say if we have OH here, OH here, OH here, and OH here, but OH is also negatively charged ligand, and overall charge is 2 minus. So pair, what is the charge on Cu? 2 plus. 2 plus, क्योंकि negatively charge 4 है, -4 plus x equals -2, so x is +2. Any question beta? कोई क्वेश्चन? अच्छा, ना बेटा आप जरा मुझे सोच के बताओ कि अगर गिवन कॉम्प्लेक्स इज लाइक दिस, CO and then it's C2O4, overall charge is 1 minus, and here I am placing 2, और मैं बोल रहा हूं कि it is 2D. Now better tell me what kind of ligand is present here. Which ligand is this one? C2O4. सर ये वो बाय वाला है जिसमें 2 बनता है। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया C2O4। इथाइल 1,2 डाई अच्छा, 8 एक वाला मिनट, है। ये C2O4 इज बायडेंटेट लिगेंड, ओके? इसका चार्ज 2 माइनस है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आप मेमोराइज करें इसे
क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन होगा कि ड्रॉ करें इसे। अब ड्रॉ करें तो यू नीड टू नो कि व्हाट इज दिस। दिस इज C2O4 and it is di negative and its structure is like this. This is ethane 1,2-di-O8. ये C2O4 is this thing. One lone pair here, one lone pair here. So how many dative bonds it can make? Two dative bond can be made by one C2O4. तो बेटा इसकी शेप क्या होगी इस कॉम्प्लेक्स की? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। क्योंकि इसके कितने डेटिव बॉन्ड्स होंगे? 4। 4 dative bonds होंगे। One C2O4 can make 2 dative bonds and 2 C2O4 will make 4 dative bonds. अगर 4 dative bonds बन रहे हो बेटा और 2D शेप हो तो शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर के लिए बेटा पहले आप यूं ड्रॉ कर लिया करो, ये स्टैंडर्ड dative bonds है। in this standard way just make 4 dative bonds, right? अच्छा, now you have to adjust bidentate ligand in this. तो देखो, one of the bidentate ligand I am placing like this. This oxygen has lone pair, this oxygen has lone pair. It is bonded to C double bond O, which is bonded to C double bond O, which is bonded to this oxygen. ये एक dative bond है। So ये एक bidentate ligand है, sorry. And the other bidentate ligand is like this. ठीक है? And then make square bracket. And overall charge is 1 minus. So what will be the charge on cobalt now? What is the charge on cobalt in this case? 3+। हाँ शाबाश। देखो बाइडेंटेट लिगेंड पे 2 माइनस है ना, तो टोटल लिगेंड्स का चार्ज 4 माइनस होगा। 2 minus from one bidentate ligand and 2 minus from the other. Plus x equals -1. So x will be equal to +3. So cobalt charge is +3. You should ask question beta if you have. ठीक है? तो मैंने आपको शेप्स बताई थी। लीनियर शेप बेटा, लीनियर शेप कब होगी? जब 2 coordination number होगा। When coordination number is 2, this one shape will be linear. लेकिन when coordination number is 4, तो फिर आपने ये चेक करना है वेदर शेप इज 2D और 3D। अगर 3D है तो टेट्राहेड्रल, तो ये नीचे देख रहे हैं टेट्राहेड्रल विल बी ड्रॉन लाइक दिस। अगर 2D है तो इट्स स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर विल बी ड्रॉन लाइक दिस। ठीक है? और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है बेटा, देन सॉरी 6 है, सॉरी इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सर जी, जो सेंटर एटम है उसका ऑक्टेट वगैरह नहीं देखेंगे हम? नहीं बेटा, ये जो बॉन्डिंग हो रही है ना कॉम्प्लेक्सेस की और लिगेंड्स की, इज समथिंग एल्स। ये वैलेंस शेल में नहीं हो रही। एक मिनट, जो आप कह रहे हो सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्टेट रूल देखेंगे या नहीं, ये क्वेश्चन है ना? जी सर। हाँ बेटा, ये मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा इसको आइडिया दिया था। लेट्स से कि ये हो Cu Cn twice and 1 minus, right? अब इसमें how many ligands are there? This one is linear complex, okay? Linear इसलिए कि coordination number 2 है। So this is copper, one Cn is here and the other Cn is here. ठीक है? And overall charge is 1 minus. So what is the charge on this copper beta? What is the charge on this copper? +1। It's +1 क्योंकि Cn is 1 minus। ठीक है? Cn is 1 minus, तो 2 Cn का 2 minus and copper का 1 plus. अब this copper 1 plus, copper's proton number is 29. So what is the configuration? 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6, 3d, 10, 4s 0, ठीक है। 4s के बाद देयर विल बी 4p विच इज 0, 4p के बाद 5s विच इज 0, यानी 4d के बाद जितने भी ऑर्बिटल्स हैं कॉपर 1 में, दे आर वेकेंट ऑर्बिटल्स, राइट। इन कॉपर 1 d के बाद सारे ऑर्बिटल्स आर वेकेंट, सो 4s विल बी लाइक दिस, 4p will be like this, 5s will be like this. So what happens, ये जो ligands है ना, these ligands will one-sidedly share their lone pair in these vacant orbitals, ठीक है। ये इन vacant orbitals में dative bonding बनेगी। तो ये जो लिगेंड्स हम ला रहे हैं और डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, सो सेंट्रल मेटल आयन विल एक्सपोज देयर वेकेंट ऑर्बिटल्स फॉर डेटिव बॉन्डिंग। ये डेटिव बॉन्डिंग इधर हो रही है इन वेकेंट ऑर्बिटल्स में, दैट इज व्हाई हम उस ऑक्टेट को नहीं कर रहे कंसिडर। समझ आ रही है बेटा? ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? ओके बेटा, फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हो 6 तो क्या होगी शेप? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो शेप इज ऑक्टाहेड्रल। बेटा सेंट्रल मेटल एटम लेट से कोबाल्ट में ले रहा हूं, तो ऑक्टाहेड्रल शेप विल बी लाइक दिस, 2 डेटिव बॉन्ड्स लाइक दिस, 2 डेटिव बॉन्ड इस तरह से होंगे और 2 डेटिव बॉन्ड्स इस तरह से होंगे। इस तरह से आपने 6 डेटिव बॉन्ड शो करना एंड शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। ये लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था, ओके। तो अब देखो, अब बेटा ये बताओ कि विच शेप विल हैव फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज NH2 CH2 CH2 NH2 whole taken twice, whole taken thrice and whole 2+। एग्जामिनर आपसे पूछेगा इसकी शेप क्या है, और फिर क्वेश्चन होगा कि ड्रॉ करें। जी बेटा, शेप क्या होगी बेटा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स? हेलो, 6. coordination number is 6 because it's bidentate ligand, okay? 2 nitrogens are present, so bidentate ligands are 3, so 3 bidentate ligands will make 6 dative bonds, 6 dative bonds, so shape is octahedral। अच्छा, octahedral बेटा शेप बनाने के लिए इट्स बेटर कि पहले आप ये 6 dative bonds बना लो। Make these 6 dative bonds like this, ठीक है। अच्छा, now place ligands, तो ligands आप, one of the ligand is this one, NH2 NH2, this one is bonded to CH2 which is bonded to CH2 which is bonded to this nitrogen, ये one of the bidentate ligand है। अच्छा, second bidentate ligand, this is N and this is N, this is H2, this is H2 and bonded to CH2, then bonded to CH2 and then bonded to this nitrogen, and this one is the third bidentate ligand, this is NH2, this is NH2 bonded to CH2, then bonded to CH2 and then bonded to this nitrogen, और फिर प्लेस स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट पे 2+ चार्ज है, राइट? अच्छा, एनी क्वेश्चन हियर?
So now beta charge on the copper in this case, what will be the charge on Cu? And remember ये जो है ethene diamine is neutral ligand. Ethene 2 plus. diamine is neutral ligand, so that is why the overall charge will be due to Cu. Overall charge is 2 plus, so it means charge on copper is 2 plus, right? अच्छा, so I hope बेटा आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि how to deal with these bidentate ligands. बेटा one of the bidentate ligand is this one. ठीक है, it is neutral. बेटा जनरल इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन, its general representation is En. ये वाला जो बाइडेंटेट लिगेंड है ये En से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका पुराना नेम था इथाइलिन डाइएमाइन, तो इट्स ओके, इसके पुराने नेम को याद करने की जरूरत नहीं, ये बस पता होना चाहिए कि दिस En इज जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस लिगेंड। और जो दूसरा लिगेंड है दिस वन, दिस इज एथन 1,2-DiO8, दिस इज द सेकेंड बाइडेंटेट लिगेंड। इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है OX एंड चार्ज इज 2-। ठीक है, इस आयन का पुराना नेम था ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन से ये OX निकाला, लेकिन पुराने नेम को याद करने की जरूरत नहीं है। ये जब भी OX आए 2 नेगेटिव तो इट मींस दिस वेरी लिगेंड, और En आए तो इट मींस दिस वेरी लिगेंड, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और भी कॉन्सेप्ट बताऊं। यस बेटा, कि अगर इफ दिस कॉम्प्लेक्स दे मे गिव यू लाइक दिस CuOX थ्राइस, अच्छा, so what will be the shape of this complex? What is it? Octahedral. This is octahedral because coordination number is 6. 6. OX is bidentate ligand, और ये आपको बस पता होना चाहिए कि OX is di-negative. So how to draw this complex? You will draw it like this. पहले आप जो octahedral के dative bonds है वो बना लिया करें. And now you have to adjust this OX. तो अगर एग्जामिनर आपको कहे कि ड्रॉ एज फुली एज पॉसिबल, फिर तो यू कैन टेक दिस, यू हैव टू टेक दिस वन, ड्रॉ एज फुली एज पॉसिबल में। दिस इज O एंड बॉन्डेड टू दिस, ठीक है, दिस इज O एंड दिस इज O एंड दिस इज कार्बोनल, bonded to this one, and this is O and this is O and bonded to, ठीक है, and then square bracket, okay, with 4-। समझ आ रही है बेटा? What is the charge on copper here? +2. हाँ, +2, because ligand से -6 बनेगा। Charge on the ligand is -6, 1 OX is 2-, और कॉपर विल बी +2, तो ओवरऑल चार्ज विल बी -4। लेकिन बेटा अगर एग्जामिनर ने आपको कुछ ये नहीं कहा कि डिटेल में बनाएं, यू कैन आल्सो ड्रॉ इट लाइक दिस, सी यू, this one, okay, you can also draw it like this, OX, ये 1 bidentate ligand हुआ, now this one is second bidentate ligand, this one is third bidentate ligand, overall charge is 4-। right बेटा? अब इट डिपेंड्स, वहां एग्जामिनर का क्वेश्चन आप देखोगे, ओके, अगर वो चाह रहे हैं कि डिटेल में आप लिगेंड शो करें, फिर तो आपको यूं बनाना चाहिए,
अगर लिगेंड्स के सारे बॉन्ड्स शो करने हैं फिर यू हैव टू शो इट लाइक दिस. सो इट डिपेंड्स कि एग्जामिनर हाउ दे आर आस्किंग द क्वेश्चन. लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा एंड यू हैव टू सेव टाइम तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस एज वेल. ओके बेटा, आई होप कि ये बातें सब समझ आ रही हैं बेटा. जी सर. ओके देखो बेटा, इफ द कॉम्प्लेक्स इज लाइक दिस, इसके बाद में आइसोमेरिज्म स्टार्ट करनी है. इफ इट इज लाइक दिस, En3 and overall charge is 2 plus, you know En is equal to which thing? En is this complex na, sorry, this ligand. En is this ligand. ठीक है. So what will be the shape of this complex? Octahedral. Octahedral, because coordination number is 6 in this case. Just take this Cu and take these dative bonds and अच्छा बेटा, you can draw it like this. It depends कि एग्जामिनर का क्वेश्चन कैसा है. En, this is one bidentate ligand, this is second bidentate ligand, this is third bidentate ligand. ठीक है. अगर ये नहीं कहा ना कि लिगेंड को डिटेल से बॉन्ड करो, शो करो, तो फिर आप इस शॉर्ट वे में भी शो कर सकते हो. राइट. ओके, एनी क्वेश्चन बेटा? नहीं. ओके, ना बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आइसोमेरिज्म. सो यस, हाउ वुड यू डिफाइन आइसोमेरिज्म? सेमेस्टर ऊपर चल जाए उसको नोट डाउन कर. ओके, हाउ वुड यू डिफाइन आइसोमेरिज्म? Isomerism. Complexes with the same molecular formula ठीक है सर. but different shapes. Okay. Complexes with same molecular formula but different orientation of bonds. But different orientation of bonds. Remember that in complexes we will discuss stereoisomerism. Complexes shows stereoisomerisms. ठीक है. ये बेटा जितने ये मैं कंपाउंड्स बना रहा हूं ना जिनकी शेप ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, इनको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कि जिसमें सेंट्रल मेटल आयन है और लिगेंड्स हैं और दे आर म्यूचुअली बॉन्डेड थ्रू डेटिव बॉन्ड्स. तो ये जो आयन्स आप देख रहे हो, जो शेप्स हम बना रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस हैं. इन कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमेरिज्म होगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ठीक है. नाउ स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स की होगी? आइसोमेरिज्म अगर स्टीरियो है, you know stereoisomerism is of two types. One of the type is geometric isomerism. ठीक है. And the other type of stereoisomerism is optical isomerism. Geometric and optical isomerism हम पढ़ेंगे. Geometric isomerism को we also name as cis-trans isomerism. तो एक हम cis-trans isomerism पढ़ेंगे और दूसरा हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे. ठीक है. तो बेटा आइसोमेरिज्म लीनियर कॉम्प्लेक्सेस में नहीं होगी, टेट्राहेड्रल में भी नहीं होगी. ठीक है. आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होगी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस.
Okay, according to your syllabus, we will discuss stereoisomerism. Stereoisomerism, बेटा आप यहां से आगे गौर से सुने. Stereoisomerism in square planar complexes and octahedral complexes. इनमें हम आइसोमेरिज्म स्टडी करेंगे. ओके, और नो आइसोमेरिज्म, according to your syllabus, we will not discuss any isomerism in linear and tetrahedral. Tetrahedral और linear में हम कोई isomerism discussion नहीं करेंगे. Whatever isomerism we are discussing here is for square planar and octahedral complexes, not for linear, not for tetrahedral, right? So you have to only focus square planar and octahedral for isomerism. ठीक है दानियाल बेटा, मैं चला जाऊं आगे. जी सर चले जाएं. ओके, अच्छा ना बेटा, अब ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. ओके, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म which is also known as cis trans isomerism. Okay, acha, and this geometric isomerism, let us better start करें square planar से. Okay, square planar complexes. Beta, what is the coordination number of square planar? 4. 4 is the coordination number. Okay, अच्छा. Now beta, अगर के complex is like this, अगर के complex is like this, MA4, what it means beta? MA4, M is the central metal line and A is ligand. So A4 means 4 ligands. ठीक है, तो there will be no cis trans. No cis trans अगर complex इस तरह का है, MA4 है. If complex is MA3B, what it means beta? A3B. सर A के 3 मॉलिक्यूल होती है. तीन लेगेंड एक तरह के हैं और फोर्थ लेगेंड डिफरेंट है, तो नो सिस ट्रांस. बेटा ये समझ आ रही है? अगर के ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स है ना, मैंगनीज के साथ 4 क्लोरो लेगेंड्स हैं, तो इस सिस ट्रांस पॉसिबल हेयर? नो सर. नो सिस ट्रांस पॉसिबल. ओके, अच्छा, अब अगर ऐसा लेगेंड है, कोबाल्ट है, H2O 3 and CN1, इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है बेटा? नो. नहीं सर. ठीक है, ये जो है दूसरा मैंने बनाया, ये MA3B है. इट इज लाइक दिस. अच्छा, और फिर बेटा अगर आपके पास ये सिचुएशन है MA2B2, तो यस पॉसिबल है. अब सिस ट्रांस पॉसिबल है. सिस ट्रांस इज पॉसिबल इन दिस सिचुएशन, राइट? MA2B2, सिर्फ इस सिचुएशन में सिस ट्रांस पॉसिबल है. नाउ इफ यू हैव MA B3, तो फिर नॉट पॉसिबल. फिर अगर आपके पास MB4 है, नॉट पॉसिबल. जी बेटा, एनी क्वेश्चन? नहीं सर. अच्छा, सिर्फ MA2B2 के केस में सिस ट्रांस पॉसिबल है. अच्छा, आप इसको अब लीजिए, ठीक है? MA2B2. अच्छा, एंड दिस इज स्क्वायर प्लेनर. ओके, हम स्क्वायर प्लेनर की डिस्कशन कर रहे हैं. टेट्राहेड्रल में आइसोमेरिज्म नहीं होगी.
अच्छा, अब नाउ दिस इज M, तो स्क्वायर प्लेनर बेटा इट विल बी लाइक दिस ना, स्क्वायर प्लेनर इज लाइक दिस, स्क्वायर प्लेनर इज लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब अगर A और A, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू A? 90। हाँ, इस एंगल को क्या बोलेंगे बेटा? ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर में ये सब 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, एंड B will be placed here. So what is the angle now between B and B? 90। 90 degree. So this will be cis. अगर identical ligands are 90 degree apart, if identical ligands are 90 degree apart, then that complex is cis. ये देखो, अगर मैं इसको चेंज करूं, ओके, जस्ट चेंज इट, चेंज इट, मैं अगर A इधर लिख दूं बेटा, so now what is the angle? 90। This is 90 degree. So then I have to write B here. So what is the angle here? 90। 90। 90 degree. So if identical ligands are 90 degree apart, this will be cis. लेकिन if I take M, this is, and this one, if I take A here and the next A is here, and B here and the other B is here, ट्रांस आप देखो A और A में कितना एंगल है? 180। 180 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली B और B में भी एंगल 180 ही आ रहा, तो दिस इज ट्रांस। समझ आ रही है? तो अब इसका रूल क्या बना? रूल बेटा ये बना कि इफ आइडेंटिकल लिगेंड्स आर 90 डिग्री अपार्ट, इफ आइडेंटिकल लिगेंड्स आर 90 डिग्री अपार्ट, तो फिर ये होगा सिस, ठीक है। लेकिन इफ 180 डिग्री अपार्ट, फिर ये हो जाएगा ट्रांस। क्लियर बेटा? जी सर। अच्छा, अब देखो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन में, लेट्स से एग्जामिनर में आस्क यू क्वेश्चन कि ड्रॉ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ PTCl twice CN twice, ठीक है। अच्छा, अब बेटा अब आपको क्या पता कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर? आप कैसे अब यहां से डिटेक्ट करोगे? क्वेश्चन में What is- हाँ, क्वेश्चन में गिवन है ना, आप बताओ ये जो कॉम्प्लेक्स इसकी शेप क्या होगी? सर स्क्वायर प्लेनर होगी। इसकी स्क्वायर, तो आपको कैसे कंफर्म हुआ कि ये स्क्वायर प्लेनर है? सर उसने लिखा है कि आइसोमर्स इसके ड्रॉ करने हैं। हाँ हाँ, यानी टेट्राहेड्रल की आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, टेट्राहेड्रल के आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। शुरू में हमने डिस्कस किया ना कि टेट्राहेड्रल के आइसोमर्स नहीं बनेंगे, और ये कह रहे हैं कि ड्रॉ करें आइसोमर्स, तो फिर इसने स्क्वायर प्लेनर ही होना है। स्क्वायर प्लेनर के आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं लेकिन टेट्राहेड्रल के नहीं हो सकते। तो फिर बस सिंपल इस दिस ऊपर हमने डिस्कशन की है, आप स्क्वायर प्लेनर आप ड्रॉ कीजिए, दिस इज यू नीड टू ड्रॉ स्क्वायर प्लेनर, ओके। तो और फिर इस साइड पे भी ड्रॉ कीजिए। अच्छा बेटा सॉरी, इस पे चार्ज भी था 2 माइनस हियर, यस। सो फिर उसके बाद यू हैव टू प्लेस द लिगेंड्स। चलें, लिगेंड्स बेटा प्लेस करने, तो हाउ शुड आई प्लेस लिगेंड्स? इफ आई प्लेस Cl here and Cl here, ट्रांस CN here, this one is ट्रांस
trans. If I place Cl here and Cl here and Cn here and Cn here, so this one is cis. ठीक है, आइडेंटिकल लिगेंड्स 90 डिग्री अपार्ट हैं इस जगह पे, तो दिस इज ट्रांस. जहां आइडेंटिकल लिगेंड्स आइडेंटिकल लिगेंड्स 180 डिग्री अपार्ट हैं तो फिर ट्रांस, 90 डिग्री अपार्ट हैं तो फिर सिस. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, यू हैव टू शो दिस चार्ज. एनी क्वेश्चन बेटा? नहीं सर. अच्छा, अगर क्वेश्चन नहीं है तो बेटा द नेक्स्ट थिंग इज बेटा is octahedral complexes. Okay, now we are to take octahedral complexes. Still we are doing the geometric isomerism, okay, for cis trans. अच्छा, octahedral complexes में बेटा, if this is the situation MA6, so no cis trans possible. ठीक है, if this is the situation MA5B, no cis trans possible. इन दोनों में no cis trans, right बेटा? But if we have this situation MA4B2, तो फिर cis trans possible है. Now cis trans is possible. If you have MA3B3, so once again cis trans is possible. Only in these two situations cis trans will be possible. Octahedral complex में only in these two situations cis trans will be possible. बाकी किसी और सिचुएशन में cis trans is not possible. MA4B2 यानी 4 लिगेंड्स एक तरह के और 2 लिगेंड्स दूसरी तरह के. सर A2B4 नहीं हो सकता? हाँ, A2B4 भी हो, that has the same meaning बेटा. मतलब 2 लिगेंड्स एक जैसे हो, 4 लिगेंड्स दूसरे एक जैसे हो. ठीक है, ठीक है, तो A4B2 और A3B3, तो यस आप इसको ये कहना चाह रहे हो MA2. सर जी सर, एक ही बात है. एक ही बात है ना, ये इसमें भी पॉसिबल होंगे, इसमें भी पॉसिबल होंगे, राइट? अच्छा, अब इसको जरा ड्रॉ करके देखते हैं. ठीक है, लेट अस ड्रॉ. पहले इसको ड्रॉ करते हैं MA4B2 को. अच्छा, ये ऑक्टाहेड्रल है, तो पहले तो आप ये 6 डेटिव बॉन्ड्स बना लें ऑक्टाहेड्रल के, लाइक दिस. ये 6 डेटिव बॉन्ड्स हैं. अच्छा, अब बेटा इसमें B को चेक करें. ठीक है, B, इफ आई प्लेस B हेयर एंड हेयर, तो कितना एंगल है बेटा? 90 डिग्री. 90 डिग्री. तो बस ये सिस होगा. आपने B को चेक करना, राइट? अच्छा, अब अगर मैं ये करूं बेटा, इफ आई प्लेस दिस B हेयर, सो व्हाट इज दिस एंगल? 90. हाँ, ये क्लियर है ना सबको? ये भी सिस ही है, दिस इज सिस. ठीक है. अच्छा, इफ आई प्लेस दिस B हेयर, अब व्हाट इज दिस बॉन्ड एंगल? 180. नहीं बेटा, ये 180 नहीं है, दिस इज 90. सॉरी. समझ आ रही है? ये वेज और डॉटेड एक प्लेन में है, वेज और डॉटेड एक प्लेन में है. ये ऊपर और नीचे वाली जो लाइंस है ना, ये आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन होंगी. जी सर, 90 है. ये सबको क्लियर है या मैं कोई इसके डायग्राम दिखाऊं यूट्यूब से? दिखा दे सर. एक मिनट बेटा, इसको मुझे फिर गूगल सर्च पे जाना है.
ये देखो बेटा, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करूं। ओके, देखिए बेटा, इस शेप को यहां से क्लियर होगा। ये डायग्राम देख रहे हो, ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। ये देख रहे हो बेटा, एक मिनट, दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल। अब यहां इसको मुझे ट्रेस करना बेटा, मुझे इसे कॉपी करना होगा वरना इस पे राइटिंग नहीं आएगी। ये बेटा कर्सर आपको नजर आ रहा है? कर्सर नजर आ रहा है बेटा? जी सर आ रहा है। तो ये देखो, ये कर्सर मैंने यहां रखा और दूसरा कर्सर मैंने यहां रखा। क्या बॉन्ड एंगल होगा इस जगह और इस जगह? 90। 90 डिग्री एंगल होगा ना? ओके सर। जी बेटा, सैफुल्लाह रिजवान, क्लियर हुआ आपको? जी सर। ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये प्लेन में आप देखें जो चार बॉन्ड्स हैं इनका 90 डिग्री है, ठीक है। और ये आउट ऑफ द प्लेन का, यानी यहां से आप एस्टिमेट कर सकते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। सो दैट इज वाई ये 90 डिग्री होगा इस वक्त, बी और बी, ये सिस ही कंसिडर होगा, ठीक है। मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूं। इस बी को उठा के आप इधर ले आओ। अब बेटा, अब भी ये सिस है, अब भी सिस है क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। और बाकी ए मैं इधर लिख रहा हूं, तो ये सिस है। एंड व्हाट अबाउट ट्रांस? जब 180 डिग्री हो जाए। हाँ, ट्रांस को आप, ट्रांस के लिए आपने बी को यूज करना है, ठीक है। जस्ट यूज बी। अगर बी इधर हो और इधर हो बेटा, अब क्या है ये? ट्रांस। ट्रांस, क्योंकि 180 डिग्री अपार्ट हैं बी और बी। अच्छा, लेकिन इस बी को अगर आप इधर ले लो, एक बी इधर लो और दूसरा बी इधर लो, अब क्या है? ट्रांस। अभी भी ट्रांस है, ठीक है। और अगर बी को आप दूसरे डायगोनल पे ले लो, बी को इधर लो, दूसरे बी को इधर लो, अभी भी ट्रांस है, ठीक है। तो देन ए एंड ए। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो दो आइडेंटिकल लिगेंड्स हैं वो 90 डिग्री अपार्ट हुए तो सिस, 180 डिग्री अपार्ट हुए तो ट्रांस। और ए को आप नहीं चेक करो, A4 B2 में आपने बी को चेक करना है, ए को नहीं करना चेक, ठीक है। तो रूल क्या बना? रूल बेटा, फॉर MA4B2 चेक बी, आपने बी को चेक करना है, ठीक है। इफ टू बीज आर 90 डिग्री अपार्ट तो फिर होगा सिस। 180 डिग्री अपार्ट हुए तो फिर होगा ट्रांस। 180 डिग्री अपार्ट हुआ तो फिर होगा ट्रांस, ठीक है। एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, एंड बेटा अब दूसरी सिचुएशन भी डिस्कस कर लेते हैं। MA3B3, MA3B3, तो दिस इज M, ये दो डेटेड बॉन्ड ये हैं। इसमें आप सोचें बेटा क्या सिचुएशन होगी सिस की और क्या ट्रांस की होगी? वन इज दिस वन एंड द अदर इज दिस वन। जी बेटा, आप क्या जहन में आ रहा आपके? सर ए के तीनों एटम्स जो होंगे एक दूसरे से 90 पे होंगे तो वो सिस होगा। अच्छा, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि सारे 90 डिग्री अपार्ट हों तो वो सिस होगा, ठीक है। सही कहा, सही कहा बेटा। अब देखो, अगर ए इधर है, दूसरा ए इधर है, तीसरा ए इधर है,
इन सब का इसका और इसका एंगल कितना है 90, इसका और इसका एंगल कितना है 90, तीनों एज 90 डिग्री अपार्ट हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिस जब तीनों एज 90 डिग्री अपार्ट हो। लेकिन दूसरे केस में देखो ए इधर है, दूसरा ए इधर है, तीसरा ए इधर है। अब एक एंगल तो 90 है, लेकिन अगला ए और ए में एंगल 180 है, ठीक है। तो अगर एक भी 180 डिग्री का एंगल आ जाए ए और ए में, इस केस में तो फिर वो ट्रांस होगा। एनी क्वेश्चन बेटा? नहीं सर। अच्छा, जब इधर देखो सिस में जब ए 90 डिग्री अपार्ट है तो खुद ब खुद बी भी 90 डिग्री अपार्ट ही आएंगे। आप बी को चेक करो तो बी भी 90 डिग्री अपार्ट ही आ रहे हैं। जब ए 90 डिग्री अपार्ट आएंगे तो बी भी 90 डिग्री अपार्ट ही बनेंगे। और इधर आप बी ड्रॉ करो तो देखो ये दो बी 180 डिग्री अपार्ट हैं, ये 90 डिग्री अपार्ट है, और दूसरा बी और बी 180 डिग्री अपार्ट है, ठीक है। तब रूल क्या बना बेटा? रूल ये बना कि फॉर MA3B3 इफ ऑल 3A are 90 डिग्री अपार्ट तो फिर होगा सिस, ठीक है। इफ एनी 2A 180 डिग्री अपार्ट, कोई भी दो ए अगर 180 डिग्री अपार्ट हुए तो फिर ट्रांस होगा। अच्छा, एग्जाम में ये क्वेश्चन होगा आपसे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, ओके। एग्जामिनर आपको बोलेगा ड्रॉ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स फॉर, तो ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट H2O 4 NH3 2, ठीक है। और तो फिर आपने यहां सिस ट्रांस आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। और ये भी हो सकता है आपसे कहा जाए कि ये ड्रॉ करें MnCN थ्राइस OH थ्राइस -4। तो इनके आप बेटा एज अ होमवर्क ले लेना, इनके सिस ट्रांस आप बना लेना। ये ऊपर वाला कौन सी टाइप है बेटा? MA4B2 टाइप है ना? जी सर। और नीचे वाला कौन सी टाइप है? MA3B3 टाइप है। इन दोनों के अलावा अगर कोई और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसका सिस ट्रांस नहीं बनेगा। सिस ट्रांस सिर्फ इन्हीं टाइप्स के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का बनेगा। तो ये आप एज अ होमवर्क प्रैक्टिस कर लेना। सो बेटा दैट इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे बेटा।